إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر مختلف مثالیں بیان کی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے احادیث بیان کی ہیں، مثالیں دی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے کے اندر نبی بن کے آئے جو آپس میں برادریزم، خاندان، پارٹیزم کے اوپر ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے تھے، خون بہا رہے تھے، گردنیں اڑا رہے تھے. کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، پانی پلانے کے اوپر لڑائی، گھوڑا آگے کیوں گزرا ہے، اس نے بات کیوں اس طرح کی ہے، اس چیز کے اوپر لڑائیاں شروع ہوتی اور وہ 100 سال تک جنگیں موجود ہیں. ایسا معاشرہ تھا کہ جانوروں کے اور انسانوں کے اندر فرق نہیں تھا، نسلیں ختم ہو جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور کے اندر ان لوگوں کی تربیت کی اور ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ جو اسلام کے اندر آ گیا وہ ان کی آپس میں تعلق کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اشد علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں نرم ہوتے تھے، آپس میں محبت کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کا دفاع کرتے تھے، ظلم و زیادتی نہیں کرتے تھے. لیکن کافروں کے سامنے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے تھے، کافروں کے لیے سخت ہوتے تھے، آپس میں نرم، پیار، محبت. یہ معاشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس کوئی نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ مال تھا، پاؤں سے ننگے تھے، جوتے نہیں ہوتے تھے، 70 ڈھانپے ہوئے تھے. 1000 لشکر کو 313 شکست دے دیتا تھا، جن کے ہاتھوں میں صرف کھجور کی چھڑیاں ہوتی تھی. ان کے ایمان مضبوط تھے، آپس میں تعلق مضبوط تھے. اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو پھر دنیا کے اندر حکومت عطا کی. جو بڑی بڑی حکومتیں بن چکی تھی ان کے خزانے اللہ نے ان کو دے دیے، فتوحات عطا فرمائی. اور ان کا آپس میں جو تعلق تھا نا، اس حدیث کے اندر میں مختصر بات کرتا ہوں. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال بیان کر کے ہمیں سمجھائی ہے. المومن، جو مومن ہوتا ہے، مرآۃ اخیہ المومن، اپنے مومن بھائی کے لیے ایک چشمے جیسی، اس چشمے جیسا ہے، شیشے جیسا. جس طرح کہ شیشہ ہوتا ہے نا، چشمہ، آئینہ، وہ جو کردار ادا کرتا ہے نا، ایک مومن دوسرا مومن اپنے بھائی کے لیے معاشرے کے اندر وہ کردار ادا کرے. وہ کردار ہے کیا؟ نمبر 1، جو ہم آئینہ، شیشہ لگاتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دیوار کے ساتھ لگا ہے، شوکیس کے ساتھ لگا ہے، کسی چیز کے ساتھ، اس کے اندر ہم چہرہ دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھ کر اپنے چہرے کو سنوارتے ہیں، داغ دھبے لگے ہو اس کو درست کرتے ہیں. یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. میں نے بال سیدھے کرنے ہیں، داڑھی سیدھی کرنی ہے، عورتوں نے اپنے میک اپ کرنا ہے شیشے کے سامنے بیٹھ کر، تاکہ میرا چہرہ درست ہو جائے، میرے بال درست ہو جائے. اس شیشے کا بنیادی مقصد اصلاح ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایک مسلمان کا کردار اپنے معاشرے کے لیے، دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے کردار کیسا ہونا چاہیے؟ اصلاح والا، خیر خائی والا، دعوت والا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد ہو یا مومن عورتیں ہوں،
बाज़ुहुम औलिया बाज़, ये एक दूसरे के दोस्त हैं। दोस्तों का काम गर्दनें उड़ाना नहीं, नुकसान पहुंचाना नहीं है। वो उनका काम अल्लाह ने बयान किया है, वो नेकी का हुक्म देते हैं, अच्छे कामों का हुक्म देते हैं, बुरे कामों से रोकते हैं, दीन की दावत देते हैं। और जो दीन के अलावा उनके अंदर कोई काम उनसे रोकते हैं कि यह दीन नहीं है, दावत का काम करते, इस्लाह का काम करते, धड़ेबाजी नहीं करते। दूसरी चीज, शीशा जो ये किरदार अदा करता है दावत का, वो यकरुख होता है। ये जिस तरह शीशा लगा है तो दोनों तरफ से नजर आ जाता है, ये सही किरदार अदा नहीं करेगा, आपका चेहरा सही नहीं दिखाएगा, आपके चेहरे के ऊपर लगे हुए धब्बे नहीं दिखाएगा। जब एक तरफ से बंद होगा, एक तरफ से आप शीशा देखेंगे, वो सही किरदार अदा करेगा। इसलिए शीशा यकरुख होता है। मोमिन को भी अपने भाई के लिए यकरुख होना जरूरी है, माशरे के लिए यकरुख होना जरूरी है, दो रुखा नहीं होना चाहिए। यकरुख एक चेहरा होना चाहिए, दूसरा चेहरा नहीं, दो चेहरे नहीं। मैं इससे मिलूंगा तो मेरा और चेहरा है, उससे मिलूंगा तो मेरा और चेहरा है, मैं इससे और बात करूंगा, उससे और बात करूंगा। ये मोमिन के जेब नहीं देता। मोमिन उसके मिलेगा तो उसकी बात वही है, उसके से मिलेगा तो उसकी बात वही है जो अल्लाह उसके रसूल ने फरमा दिया, तरबियत कर दी है, उसी चीज के ऊपर मोमिन खड़ा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ऐसे दो रुखे जो होते हैं, इसको मुनाफिक की निशानी बयान की है और फरमाया है वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्नमा आकुम इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन। जब वो मोमिनों से मुनाफिक मिलता है, कहते हैं हम तो ईमान वाले हैं, और जब अपने शयातीन काफिरों के सरदारों से, यहूद और नसारा से, जिनसे उनके दुनिया के मफाद उनके पास, उनसे मिलता है, कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं। क़ालू इन्नमा आकुम, मैं तो तुम्हारे साथ हूं, इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन, और मैं तो मुसलमानों से मजाक करता हूं। मुसलमानों से मिलता है तो उसका चेहरा और होता है, और बात होती है, उनको भी अपनी हमदर्दी जिताता है, और काफिरों के शैतानों से मिलता है, हाँ यहूद और नसारा के शयातीन से मिलता है, उनके सरदारों से मिलता है, उनको कहता है मैं तो तुम्हारे साथ हूं, मेरी हमदर्दी तो तुम्हारे में, मेरा पैसा, मेरी औलाद, मेरा कारोबार तुम्हारे मुल्कों में है। पाकिस्तान में जब आते हैं कहते हैं हम तो पाकिस्तानी हैं। यह दो रुखा, यह मोमिन नहीं हो सकता, यह मुनाफिक की निशानी है। मोमिन जो है माशरे के अंदर यकरुख होना जरूरी है। ये दो चेहरे कभी उधर कभी उधर, कभी उस पार्टी की मुखालफत कर रहे, कभी उस पार्टी की मुखालफत कर रहे। नहीं भाइयों, एक मनहज नजरिया अल्लाह ने दिया है, उसके ऊपर खड़े हो जाओ, जमा हो जाओ। सहाबा के अंदर दो रुखी नहीं होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दो रुखे होते हैं ना, कल क़यामत के दिन उनके मुंह के अंदर दो ज़बानें आग की बनाकर लगाई जाएगी। दो ज़बानें आग की लगाई जाएगी जो दो रुखी इख्तियार करते हैं अपने मफाद के लिए, कभी उधर कभी उधर नहीं। तीसरी चीज, आप शीशे को दीवार के साथ मार दें, टोटे टोटे कर दें, आप उसका एक टोटा भी उठाएंगे ना, एक टुकड़ा भी उठाएंगे ना, उसको भी देखेंगे तो वो भी अपना किरदार अदा करेगा, वो अपना काम नहीं छोड़ेगा। बंदे को, मोमिन को वसी और ज़र्फ होना चाहिए, बड़े ज़र्फ वाला होना चाहिए, बड़ा दिल वाला होना चाहिए, कि बर्दाश्त होनी चाहिए उसके अंदर, बर्दाश्त। माशरे, अगर तुमने माशरे को बनाना है तो फिर बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी, गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के अंदर गए, वहां के लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत नहीं सुनी, अल्लाह के नबी की बात नहीं सुनी, नौजवानों को पीछे लगा दिया, धक्के मार मार के बैग निकाल दिया। आगे एक बाग था, उसके दीवार थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरे से खून बह रहा है, चेहरा जख्मी है, जिस्म जख्मी है, गुलाम साथ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठते हैं, ऊँग आ जाती है, आंख खुली तो देखा एक फरिश्ता खड़ा है, अल्लाह ने मुझे भेजा है, अगर आप इजाजत दें तो इनको, तैफ वालों ने जिन्होंने आपके ऊपर जुल्म किया इनको, हाँ, दो पहाड़ों के दरमियान
जिस तरह चक्की के पार्ट होते हैं उनके उस तरह पीस दे, खत्म कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा हाँ इनको पता था चलेगा कि मैं कौन हूं, कहा नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने हाथ उठा लिए, कहा अल्लाह महदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह मेरे इस कौम को हिदायत दे दे, इसको हिदायत समझ दे, ये जानते नहीं है, इनको इल्म नहीं है। और मेरे भाइयों, माशरे के अंदर ये किरदार अदा करना पड़ेगा, गुस्से को खत्म करना पड़ेगा। ये जो हमारे मुल्क के अंदर हुआ है, ये नुकसान किसका है? दुश्मन आज खुश हो रहा है, आज दुश्मन इंडिया खुश हो रहा है। इनका मीडिया देखे कि ये पाकिस्तानी है और पाकिस्तान को आग लगा के रखी हुई है, अपने पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हो। हमारे वो कमजोर दिहाड़ीदार एहतजाज करके, हड़तालें करके, उनकी दिहाड़ी खत्म हो गई, उनकी भूख के अंदर इजाफा हुआ या कमी हुई? बस ये सिर्फ मोमिन को होना चाहिए। तो भाइयों, और भी काफी मिसालें हैं। तो हमें अल्लाह और उसके रसूल के जो अहकामात हैं, ये हमारे लिए बेहतरीन रहनुमाई है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें कुरान हदीस पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आपस में जो जितने भी हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, आपस में जिस तरह सहाबा रहते थे, हाँ, उस तरह हमें रहने की तौफीक अता फरमाए। आपस में नरम और काफिरों के लिए सख्त। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे हमारे